Hello everyone, this is lecture series on Introduction to Quantum Mechanics and I am Asad Ali. Today's lecture is 33 and I am going to discuss the computing expansion coefficient with Dirac notation. आपको याद होगा हमने जब हम शुरू में स्टडी कर रहे थे वेव फंक्शंस के बारे में, उस वक्त हमने बताया था कि कैसे डिस्कस किए थे कि कैसे आप एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हो यूजिंग श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, मीन्स अलजेब्राइक जो क्वांटम मैकेनिक्स थी जिसमें आप वेव फंक्शन वाला अलजेब्रा कर रहे थे इंस्टेड ऑफ डिराक केट्स, तो उस वक्त आपने एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट किए थे. बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज कोएफिशिएंट्स व्हाइल using Dirac notation. So let's start. So first of all we will discuss Dirac algebra. ठीक है, we will briefly discuss something about Dirac algebra. Few things about Dirac algebra. So in this video what I am going to do, we are going to focus how to represent vectors entirely on Katz and Bras, and we will learn the basics of Katz and Bras, and then we will calculate the expansion coefficient. ठीक है, so we will assume that we are using the orthonormal vectors. So for that we are assuming that we are using orthonormal बेसिस. याद है आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एंड व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस? मींस इफ यू आर गिवन विद certain set of bases, let's say this is n dimensional in v space, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि ui का इनर प्रोडक्ट अगर आप यू जे से लेते हैं तो दिस गिव्स यू यू आई जे. ठीक है, सो ये आपको क्या देता है? यू आई जे दे देता है. ठीक है, इसी तरह अगर आप यूज़ की जगह फाइज यूज़ करते हैं, फाई 1, फाई 2, फाई 3 जे, फाई एन, तो ये बनता है फाई आई, फाई जे विल गिव यू क्रोनेकर डेल्टा आई जे, where it will give you 1 when I is equal to j and 0 whenever I is not equal to j. So ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन जो है, ये बेसिस अगर फॉलो करते हैं तो ये बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहलाते हैं. ठीक है, सो अभी हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस अज्यूम करेंगे डिराक अलजेब्रा करते हुए. सो ये आपको पहली चीज़ आपने याद रखनी है. दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई केट है, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय अ ब्रा. हाउ? सिंपली if you have, let's say you have a vector with some constant, then how you can transform this ket into bra? Just by taking the complex conjugate of that number alpha and just replace the ket by a bra. And since alpha star is a number, so it really doesn't matter whether you write this number on the left side of Katz for bra side or left side of bra sides, both are same. So आप यूँ लिख सकते हैं. ठीक है, you can even write a number with a ket in this way. So both are same. ठीक है, this is just a label. Even if you have a number which is from and which is at the left side of ket side, and you can even bring it in the label, bring it as a label which is understood that alpha is outside this vertical bar. ठीक है, so इसका ये मतलब है. You can even write this way since it is a number. ठीक है, and if you can do the same thing with the ket, and if you have a ket, let's say even if you have a bra, then you can take the complex conjugate of this bra and you will get this thing, and alpha को आप इधर भी लिख सकते हो और इस अल्फा को आप इसके अंदर ले जाएंगे
तो इट इज अंडरस्टूड कि ये ब्रा साइड में अल्फा है, तो स्टार जब ये बाहर जाएगा तो इसके ऊपर स्टार आ जाएगा। तो यहाँ स्टार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंस दिस इज इनसाइड द ब्रा, so if you will bring it outside from this bra, then yeah, automatically it will be conjugated, complex conjugated, ठीक है। so इसका मतलब सेम है, सही है। so this is a few little things about Dirac notation। और अब हम बात करेंगे कि एक्सपेंशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करें Dirac notation में। बट बिफोर गोइंग टू दैट we will briefly review what we have learned in our the earlier lectures on calculating the expansion coefficient, सही है। तो पहले वो रिव्यू करते हैं, उसके बाद फिर हम Dirac notation में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जिसे हम एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स कहते हैं वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम रिव्यू करते हैं एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स का जो अलजेब्रा हमने किया था बहुत शुरू के लेक्चर्स में, परहैप्स लेक्चर 10 या 12 के अराउंड, तो वो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। यू नो दैट अ वेव फंक्शन psi is a function of x can be written as the superposition of different wave function with coefficient c1 phi 1x plus c2 phi 2x plus dash dash plus cn phi nx, ठीक है। so your wave function psi is in an infinite superposition of phi's, बहुत सारे फाइज को आपने सुपरपोज किए हुए, जमा किए हुए विथ वेटेड कोफिशिएंट्स, विथ वेट्स, ठीक है, जो इसको वेट देते हैं, इसको हैवी कर देते हैं, इसको स्केल करते हैं, इसके एम्पलीट्यूड से। सो इन्हीं सीज को, दीज सी आईज आर कॉल्ड एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फार्मूला हमने डिस्कस किया था। इसी आई एनी आयत कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड इन algebraic quantum mechanics or wave quantum mechanics by calculating the integral in general from minus infinity to plus infinity with any phi I with star psi of x dx। तो इस तरह आपको याद है हमने एक्सपेंशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया था। दिस वाज ऑल इन वेव क्वांटम मैकेनिक्स, वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स। याद रखें ये साई जो है ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज अ फंक्शन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इवन दिस phi 1 is a wave function, not a column matrix। तो रिमेंबर यहाँ पे phi 1, phi 2, phi 3 बेसिस फंक्शंस हैं, बेसिस वेक्टर्स नहीं है, बेसिस फंक्शंस हैं। वेक्टर्स कॉलम मैट्रिक्स की तरह होते हैं, यह फंक्शंस हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकती है, ये साइनोसाइडल फंक्शंस हो सकते हैं, ये फंक्शन हो सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस वेव क्वांटम मैकेनिक्स, let me write the corresponding wave function in Dirac notation। so psi की जगह मैं ये लिखूंगा cat psi, मैं उसके लिए मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। psi x is equal to c1 phi 1x plus c2 phi 2x plus dash cn phi nx, ठीक है। इसके corresponding ये तो मैट्रिक्स क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, ये वेव मैकेनिक्स है। मैट्रिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में मैं लिखूंगा c1 phi 1 cat c2 phi 2 cat plus dash plus cn phi n cat। तो इन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है, मैथमेटिकल सिमिलैरिटी है, ऑपरेशन और सुपरपोजिशन एग्जिस्ट करती है। बट रिमेंबर psi ऑफ x इज नॉट द सेम एज psi, क्यों? दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ मैट्रिक्स, सही है। सो हम किसी लेक्चर में आगे मैं आपको बताऊंगा इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। बहुत सिंपल रिलेशन है जो मैं फिलहाल एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। अगर आप पोजीशन ब्रा को, पोजीशन स्पेस में ब्रा को अगर आप किसी कैट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको psi ऑफ x देता है,
ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में किसी लेक्चर में बताऊंगा, अभी ये टाइम नहीं इसको डिस्कस करने का। तो इन दोनों के दरमियान याद रखें कैट साई और साई ऑफ एक्स उस वक्त तक बराबर नहीं होंगे जब तक ब्रा एक्स से आप मल्टीप्लाई नहीं करें। ठीक है, सो वेव मैकेनिक्स और क्वांटम वेव मैकेनिक्स और मैट्रिक्स मैकेनिक्स में ये फ़र्क है। सो दिस कम्स इन वेव क्वांटम मैकेनिक्स। इस तरह का अलजेब्रा जो वेव फंक्शन की फॉर्म में, इसको वेव क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, और ये कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर्स या कैट की शक्ल में इसको हम मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहते हैं। वो हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। सो अब हम हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स या डिराक नोटेशन की शक्ल में हम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं वो बताना चाहूँगा। सो याद रखें फाई 1, फाई 2, फाई n सारे ऑर्थोनॉर्मल हैं। तो अब मुझे ये बताएं, मुझे C1 कैलकुलेट करना है, C1 फाइंड करना है। तो C1 फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन के साथ मैं ऐसा क्या करूंगा तो मुझे C1 मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, आप C1 फाइंड करने के लिए सीधे सीधे क्या करें, फाई 1 के बाद से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। क्या, इस इक्वेशन को फॉर C1 मल्टीप्लाई विद फाई 1 ब्रा ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, कैट साई जो है ये बनेगा फाई 1 साई प्लस C1, बाहर लिख देता हूँ, फाई 1 ब्रा अंदर चला जाएगा तो फाई 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे C2 बाहर लिखूंगा, नंबर है, तो फाई 1 फाई 2 होगा। इसी तरफ प्लस फाई 1 फाई 3 होगा, फाई 1 फाई 4 होगा, अप टू सो ऑन Cn फाई 1 फाई n होगा। तो देखें फाई 1 और फाई 1 सेम होंगे तो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन क्या कहती है, दोनों सेम होंगे, 1 1 होंगे, 2 2 3 3 होंगे, तो आपको डेल्टा नोटेशन क्या देगा, 1 देगा। तो ये चीज़ आपको क्या दे रही है, 1। फाई 1 फाई 2 क्या होगा, 0 होगा। क्यों, 1 और 2 सेम नहीं है तो डिराक क्रोनेकर डेल्टा नोटेशन से 0 आंसर आएगा। इधर क्या आएगा, 0। तो ये बीच वाली सारी टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ C1 सर्वाइव करेगा। क्या सर्वाइव करेगा, C1। तो लिहाजा C1 किसके बराबर है, फाई 1 साई के। फाई 1 को साई के साथ, कैट साई के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपको C1 मिलेगा। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ। इसी तरह C2 किसके बराबर है, फाई 2 को आप मल्टीप्लाई करें साई 2 से। C3 किसके बराबर है, फाई 3 को मल्टीप्लाई करें साई से और ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन लगाते जाएं। तो लिहाजा किसी भी एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि इसकी, चलो मैं एक एग्जांपल भी अभी आपको करके दिखाता हूँ। सो इफ यू हैव अ जेनेरिक कैट psi which is written in the linear superposition of phi's and you are supposed to calculate the expansion coefficient, then what you have to do, you have to find the expansion coefficient of each and every basis, and for that you need to multiply with the bra of corresponding basis function and then you will get the corresponding expansion coefficient. ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। सो suppose we have a state which is 10 psi 1 plus 2 iota, let's say this is phi 1, this is phi 2 plus minus 8 iota phi 3। ठीक है, एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें 3 बेसिस हैं, तो 3 डायमेंशन है, सो डायमेंशन 3 है मैक्सिमम। ठीक है, सो पहले मैंने निकालना है C1। तो C1 निकालने के लिए आपको क्या करना है, फाई 1 से मल्टीप्लाई करें। सो फाई 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10 टाइम्स फाई 1 प्लस 2 आयोटा टाइम्स फाई 1 फाई 2 माइनस 8 आयोटा टाइम्स फाई 1 फाई 3। सो फाई 1 सेम है, ये 1 हो गया, फाई 1 फाई 2 डिफरेंट है, 0 हो गया, ये 0 हो गया। सो
phi1 psi1 आपको याद है C1 के बराबर है और वो 10 है, ठीक है। सो आपको C1 कितना मिला, 10 मिला। सिमिलरली आप कैलकुलेट करें C2, for that you need to multiply with the bra phi2, then you will get 2 iota, सही है। and at the end you have to do the same with phi3, so you will get 8 iota. So that's it। इस तरह आप डिराक नोटेशन में रहते हुए या मैट्रिक्स मैकेनिक्स में, मैट्रिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में, यू कैन फाइंड द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिराक नोटेशन, डिराक अलजेब्रा फॉर फाइंडिंग द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। सो thanks for watching this video. Must like, share, subscribe, and share with your physics fellows who feel difficulty whenever they are learning quantum mechanics in English language. So उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स सीख सकें उर्दू लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में। सो आफ्टर नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।